নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইম চলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা। প্ৰিয় দৰ্শক অপৰাধেই অপৰাধৰ জন্ম দিয়ে হয়। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো দিল্লীৰ হত্যাকাণ্ডৰ বিষয়ে। শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ যি স্মৃতি সেই স্মৃতি মাৰ যোৱাই নাছিলে, পুনৰ সজীৱ হৈ গ'ল সেই স্মৃতি আন এক হত্যাকাণ্ডৰ যোগেদি। হয় প্ৰিয় দৰ্শক, দিল্লীৰ এজন যুৱকে 24 বছৰীয়া এজন যুৱকে প্ৰেমিকাক ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে আৰু মৃতদেহটো ৰাখি থলে নিজৰ যি ধাবা, নিজৰ পৰিচালিত যি ধাবা, সেই ধাবাৰ ফ্ৰিজত। এনে ধৰণৰ প্ৰৱণতা কেনেকৈ জাগ্ৰত হ'ল? হয়, যিজন ব্যক্তি সাধাৰণ এজন ব্যক্তি, পূৰ্বতে কোনো ধৰণৰ অপৰাধ তেওঁ কৰা নাই, অপৰাধ প্ৰৱণতা তেওঁৰ জাগ্ৰত হোৱা নাই, কিন্তু যেতিয়া অপৰাধ প্ৰৱণতা জাগ্ৰত হৈছে বিশেষ কিছু কাৰণত নিজৰ প্ৰেমিকাক হত্যা কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। আমি শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছিলোঁ যিজন সেই অভিযুক্ত গৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰেমিকাক অৰ্থাৎ শ্ৰদ্ধাক হত্যা কৰিছিল, হত্যা কৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰি সেই শৱদেহৰ টুকুৰা টুকুৰবোৰ ফ্ৰিজত থৈ দিছিল আৰু 3 মাহ ধৰি সেই শৱদেহৰ টুকুৰাবোৰ ফ্ৰিজত আছিল আৰু এটা এটাকৈ টুকুৰা সমীপৰ জংঘলত পেলাই থৈ আহিছিলে এভিডেন্স নষ্ট কৰিবলৈ। তাৰে পুনৰাবৃত্তি পুনৰ ঘটিল প্ৰিয় দৰ্শক দিল্লীত, আৰু তাৰ মাজত এনে ধৰণৰ শৱদেহ ফ্ৰিজত থোৱাৰ ঘটনা আৰু কেইটামান আছে। অৰ্থাৎ শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ পিছত তেনে ধৰণৰ ঘটনা একাধিক, দুটাতকৈ বেছি ঘটনা বাতৰি দিল্লীৰ পৰা আহিছে। এইজন যি যুৱক, সেই যুৱকজনৰ নাম সাহিল গেহলত। যুৱকজনৰ ঘৰ দিল্লীৰ সমীপৰ হাৰিয়ানাত। নজাবুৰত যুৱকজনে এখন ধাবা পৰিচালনা কৰিছিল, ধাবা চলাই আছিল আৰু যুৱকজনে প্ৰেমৰ সম্বন্ধ স্থাপন কৰিছিল নিকি যাদৱ নামৰ এই যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে, আৰু 2018 চনৰ পৰাই তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ সম্বন্ধ, আৰু তেওঁলোকে দিল্লীলৈ আহিছিলে মেডিকেল এণ্ট্ৰেন্সৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে লিভ ইন ৰিলেশ্যনত আছিলে। কিন্তু নিকিক অৱগত নকৰাকৈ আন এক যুৱতীৰ সৈতে বিবাহত লিপ্ত হ'ব বিচাৰিছিলে ভুক্তভোগী অভিযুক্তগৰাকী, আৰু যেতিয়া নিকিয়ে গম পালে প্ৰেমিক সাহিল আন এক যুৱতীৰ সৈতে বিবাহ কৰিবলৈ ওলাইছে, তেতিয়া স্বাভাৱিকতে দুয়োৰ মাজত বাকবিতণ্ডা হ'ল, কনফ্ৰণ্টেশ্যন হ'ল, আৰু সেই ঘটনা কনফ্ৰণ্টেশ্যন বাকবিতণ্ডা ঘটিলে ফেব্ৰুৱাৰীৰ 9 তাৰিখে, আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ 10 তাৰিখে এক অজুহাতত যুৱতীগৰাকীক এখন গাড়ীত যুৱকগৰাকীয়ে লৈ গ'ল অন্য এক স্থানলৈ, দিল্লীৰ চান্দনী চক স্থানলৈ, য'ত দিল্লী গেট আছে, আৰু তাতে যুৱতীগৰাকীক মোবাইল চাৰ্জাৰৰ যিডাল কেবুল, সেই কেবুলডালেৰে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে, কোনেও নজনাকৈ, অৰ্থাৎ সংগোপনে হত্যা কৰিলে, আৰু সেই শৱদেহটো গাড়ীত লৈ পুনৰ 40 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ গাড়ী চলাই গ'ল, আৰু শেষত শৱদেহটো লৈ গ'ল নিজে যি পৰিচালনা কৰা ধাবাখনলৈ। ধাবাত যি ডাঙৰ ফ্ৰিজ থাকে, ধাবাত যিবোৰ ফ্ৰিজ থাকে য'ত বিভিন্ন সামগ্ৰী ৰখা হয় নষ্ট নহ'বলৈ, সেই ফ্ৰিজত ডেড বডিটো থৈ যুৱকগৰাকী নিজৰ গাঁৱলৈ গ'ল। 10 তাৰিখে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল, আৰু পৰিকল্পনা কৰিছিলে বিবাহ কৰি ঘূৰি আহি নিজৰ প্ৰেমিকাক টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটিব, আৰু কাটি পেলাই সেই শৱদেহৰ টুকুৰাবোৰ নষ্ট কৰি দিব, এভিডেন্স নষ্ট কৰিব। অৰ্থাৎ শিকিলে ক'ৰ পৰা? শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ পৰা এইখিনি কথা যুৱকগৰাকীয়ে শিকিলে। প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো আমাৰ সমাজত এনে কিছুমান ব্যক্তি আছে যিয়ে ডুৱেল পাৰ্চনেলিটি ৰিভিল কৰে। অন্য সময়ত সাধাৰণ সময়ত এক সাধাৰণ ব্যক্তিৰ সৈতে সাধাৰণ ব্যক্তিৰ নিচিনাকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, কিন্তু যেতিয়া ক্ষোভিত হয় তেতিয়া এনেধৰণৰ অপৰাধ প্ৰৱণতা জাগি যায়, আৰু তেতিয়াই নিজৰ আপোনজনক হত্যা কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। এয়া কিয় হয় সেয়া অন্য বিষয়, লিভ ইন ৰিলেশ্যন এক অন্য বিষয়, সেয়া আমি পাতিব বিচৰা নাই। এই যি প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতা কিয় প্ৰদৰ্শন কৰে কিছু লোকে আমাৰ সমাজত, যি লোকক অন্য সময়ত সাধাৰণ যেনেই লাগে, কেতিয়াও অপৰাধ কৰিব নোৱাৰে যেনেই লাগে, তেনেলোকে এনেধৰণৰ অপৰাধ প্ৰৱণতা কিয় দেখায়, এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আজি এই সন্দৰ্ভত আমি যি বাতৰি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেই বাতৰি আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ, তাৰপিছত মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব দিল্লীৰ পৰা শংকৰ আনন্দ, যি সেই সমগ্ৰ ঘটনাটো কাভাৰ কৰিছে। কিন্তু পোনে পোনে এই বাতৰি চাই লওঁ আহক, তাৰপিছত তেওঁৰ সৈতে আলোচনা কৰিম সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো। কিন্তু এইবাৰ চাই লওঁ বাতৰিটো। দিল্লীত শ্ৰদ্ধা কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি, ফ্ৰিজত আকৌ ওলাল যুৱতীৰ মৃতদেহ। শ্ৰদ্ধাৰ দৰে লিভ ইন পাৰ্টনাৰে হত্যা কৰিলে নিকি যাদৱ। নিশা নিকিক হত্যা কৰি পুৱা আন এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বিবাহত বহিল ঘাতক সাহিল গেহলত। হত্যাকাণ্ডৰ 4 দিনৰ পাছত দিল্লী আৰক্ষীৰ জালত পৰিল সাহিল গেহলত। ये तय है कि लड़की की हत्या गाड़ी में करी है। 2018 চনৰ পৰাই নিকি যাদৱৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল সাহিল গেহলতৰ। আনকি দিল্লী দ্বাৰকাৰ ফ্লেটত নিকিৰ সৈতে একেলগে আছিল। আনফালে পৰিয়ালৰ লোকে আন এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বিয়া ঠিক কৰিছিল সাহিলক। 9 ফেব্ৰুৱাৰীত ঠিক হৈছিল আঙুঠি পিন্ধোৱাৰ দিন, আৰু 10 তাৰিখে বিয়া। বিয়া ঠিক হোৱাৰ কথা সাহিলে জনোৱা নাছিল একেটা ফ্লেটতে লিভ ইনত থকা প্ৰেমিকা নিকি যাদৱক।
কিন্তু আঙুঠি পিন্ধোৱাৰ দিনা ইকান সিকান বাগৰি নিকিৰ কাণত পৰিল শাহিলৰ বিয়াৰ খবৰ। এই কথা শুনা মাত্ৰকে মোৰে কাম নকৰা হ'ল নিকিৰ। ফোন যোগে শাহিলক মাতি নিকিয়ে কিনিলে গোৱালৈ 2টা ফ্লাইটৰ টিকট। টিকট 2টা লৈ দ্বাৰকা নগৰৰ ফ্লেটত শাহিলৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকিল নিকি। লগত আছিল ভনীয়েক। আঙুঠি পিন্ধোৱা পৰ্ব শেষ কৰি 9 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা ফ্লেট পালেহি শাহিল। কাপোৰ কানিৰ সৈতে গোৱালৈ যাবলৈ বুলি নিশাই ভনীয়েকৰ পৰা বিদায় ল'লে শাহিল আৰু নিকিয়ে। আছে গাড়ীত উঠাৰ পাছতে সংঘাত হ'ল দুয়োৰে। নিকিৰ গোৱালৈ যোৱাৰ মন, পৰিয়ালে ঠিক কৰা বিয়াত বহাৰ মন শাহিলৰ। গাড়ীতে কাজিয়া লাগিল দুয়োৰে। বহু সময় ধৰি কাজিয়া লগাৰ পাছত GA03Y9993 নম্বৰৰ গাড়ীখনৰ ভিতৰতে মোবাইলৰ ডাটা কেবল এডালেৰে শাহিলে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিলে নিকি যাদৱক। लड़की का ओरिजिनल प्लान था गोवा जाने का इसके साथ। वो इंसिस्ट कर रही थी गोवा जाने के लिए। इधर लड़के पे दबाव था परिवार वालों का शादी के लिए, क्योंकि 10 तारीख की शादी तय थी। इनकी बहस हो गई और फिर लड़के ने गुस्से में आकर, और ताकि लड़की कोई ज़्यादा शोर शराबा ना करे, उसको अपने मोबाइल फ़ोन की केबल वायर से उसका गला घोंट के उसको मार दिया। নিশা নিকিক হত্যা কৰাৰ পাছত পুৱা শাহিলৰ গাড়ী উপস্থিত হ'ল মিত্ৰ গাঁৱত থকা পৰিয়ালৰ ধাবাখনত। বিয়াৰ বাবে কিছুদিন বন্ধ থাকিব লগা ধাবাৰ ফ্ৰিজতে শাহিলে সুমুৱাই থলে নিকিৰ মৃতদেহ। अपनी गाड़ी की में उसको बैठा के, जहाँ इसका गांव है वहाँ पे खेतों में एक छोटा इसने ढाबा खोला हुआ है, खाओ पियो ढाबा। वहाँ लाकर उसने उस लड़की की बॉडी को कंसील कर दिया, फ्रिज में बंद कर दिया उसको, और उसके बाद इसमें आके 10 तारीख को वापस अपनी शादी कर दी, जिसके साथ इनकी शादी तय थी। বিপৰীতে নিকিক নেদেখি দ্বাৰকা নগৰৰ ফ্লেটৰ এগৰাকী প্ৰতিবেশী কাষ চাপিল আৰক্ষীয়ে। নিকি নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ কথা গম পোৱা মাত্ৰকে তদন্ত চলাই আৰক্ষী উপস্থিত হ'ল মিত্ৰ গাঁৱত থকা শাহিলৰ ঘৰত। বিয়াৰ বাবে ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থকা শাহিলক 3 দিনৰ পাছত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল দিল্লীৰ বাবা হৰিদাস নগৰ আৰক্ষী। ASI सुरेश ने ये इन्फॉर्मेशन डेवलप करी थी। इंस्पेक्टर सतीश साहब और ACP राजकुमार साहब के नेतृत्व में ये टीम थी। इस टीम ने आज अक्यूज्ड को तकरीबन दिन में 9 बजे अरेस्ट किया। আৰক্ষীৰ জেৰাত শাহিল গেহলতে স্বীকাৰ কৰিলে নিকিক হত্যা কৰি মৃতদেহ ফ্ৰিজত ভৰাই থোৱাৰ কথা। শাহিলৰ ভাষ্যৰ আধাৰত নিকিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষী। লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা গাড়ীখন। আনফালে নিকি যাদৱৰ এই দশাত হতচকিত পিতৃ মাতৃ। বহু বছৰে লিভিনত থকা নিকি যাদৱক হত্যা কৰি কেইঘণ্টামানৰ পাছতে বিয়া পতা শাহিল গেহলতক ফাঁচী কাঠত উলমোৱাৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী পিতৃ মাতৃ। अभी एक महीना पहले घर पे आई थी। हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है। उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰিয় দৰ্শক, 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। 14 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ ভেলেণ্টাইন্স ডে, যিটো দিনক প্ৰেমৰ দিৱস হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, সেই দিনটোতে এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে, যিটো ঘটনাত এগৰাকী প্ৰেমিকে প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি ফ্ৰিজৰ ভিতৰত সোমাই থৈ দিছিল। মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে নতুন দিল্লীৰ পৰা শংকৰ আনন্দ। शंकर, स्वागत है आपका। दिल्ली में 1 तरीके से श्रद्धा कांड जो था उसका रिपीटेशन लग रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे पूरी वारदात क्या हुई थी, अब तक इन्वेस्टिगेशन से क्या क्या पता चला है, शंकर जी? देखिए पार्था जी, जिस तरह से इस मामले को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे इसे श्रद्धा हत्याकांड का पार्ट 2 कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धा हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया था, इस मामले में भी जो निक्की हत्याकांड का जो मामला है, इसमें भी काफी समानताएं दोनों में देखने को मिलेंगी। श्रद्धा हत्याकांड में देखने को मिला था कि श्रद्धा और आफ्ताब दोनों लिव इन में रहते थे। यहां भी इस मामले की अगर देखा जाए, निक्की यादव और साहिल गहलोत जो है वो दोनों लिव इन में रहता है। दोनों की अगर देखा जाए, दोनों का जो उम्र का है, उम्र दोनों में लगभग बराबर है। जो श्रद्धा है और निक्की, दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फासला नहीं है। और जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम देना, और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जिस तरह से बॉडी को फ्रीज में डालना, और जिस तरह से सबूतों के साथ छेड़खानी करना, तो एक तरह से कहा जा सकता है ये पूरा का पूरा मामला उसी पैटर्न पे है, और फिल्मी अंदाज में इस हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जिस दिन 9 फरवरी की रात को
जिस दिन निक्की हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, ठीक अगले दिन 10 तारीख को, 10 फरवरी को हत्या का आरोपी दूसरी शादी करता है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए कि एक तरफ उसके घर वो जिस तरह से बकायदा आरोपी अपने ही प्रेमिका की हत्या को अंजाम देने के बाद उसके शव को फ्रीज में डाल करके एक ढाबे में छुपाता है, और वहीं दूसरी तरफ उसके घर में शहनाइयां बज रही होती हैं और घर में पार्टी और मनोरंजन का साधन हो रहा था, क्योंकि उसकी शादी की तैयारी हो रही होती। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो मामला है उसी पैटर्न में है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यह हत्याकांड का मामला जो है, या पैटर्न की बात करें तो यह पैटर्न कहीं से भी उसको सही नहीं कहा जा सकता है। इस तरह की हत्याकांड का जो मामला उसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। शंकर जी, हम लोगों ने शुरुआत में ही कहा था अपराध से ही अपराध का जन्म होता है। क्या कहा जा सकता है श्रद्धा हत्याकांड से इन्होंने कुछ सीख, इन्होंने पूरा जो मर्डर को कैसे अंजाम देना है उसको सीखा था, कह सकते हैं हम लोग? देखिए यहां पर भी जो पैटर्न है उस पैटर्न के बारे में लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से आरोपी के जहन में क्या चल रहा था, किस तरह से हत्याकांड को अंजाम देगा। तो कहीं न कहीं वो फिल्मी पैटर्न और जिस तरह से पूरे कहानी जो एपिसोड है श्रद्धा हत्याकांड का, तो कहीं न कहीं वो मामला भी इस आरोपी के दिमाग में रहा होगा और उस मामले को लेकर अब पूछताछ की जा रही है। तो आज क्राइम ब्रांच की टीम आज आरोपी को आज द्वारिका स्थित कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट में पेश करने के दौरान कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मिली है। तो 5 दिनों के दिन में दौरान में उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी किन किन लोगों के संपर्क में था, किन किन लोगों से बातचीत कर रहा था, चाहे उसके फैमिली मेंबर्स हो या उसका दोस्त हो या कोई और, तो किन लोगों के संपर्क में था ये जानने का प्रयास किया जाएगा और उसी के आधार पर जल्द ही कुछ अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर किसी के नाम सामने आता है तो निश्चित तौर पे इस मामले में गिरफ्तारी होगी। हालांकि अभी तक जो आरोपी है, आरोपी के कई रिश्तेदार और उसके जो जानकार हैं, उसके मित्र हैं, उन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और ये जो पूछताछ की प्रक्रिया है वेस्ट दिल्ली स्थित जो रजौरी गार्डन थाना है उसी थाना इलाके में ही रख करके पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, देखा जाए पार्था जी, तो जिस तरह से इस तरह का युवाओं में एक लिव इन में रहने का मामला और लिव इन के दौरान में छोटी छोटी बातों को लेकर जिस तरह से टकराहट होती है, तो कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है कि आज का जो लिव इन रिलेशन वाला जो फॉर्मेट की बात करें या बहुत सारे जो लोग हैं जो पारिवारिक दायित्व से निकलना चाहता है, परिवार से बाहर निकलना चाहता है, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि उसी वजह से इस तरह के जो कमजोरियां हैं, जो एक कहा जा सकता है उसका उसकी जो कमी है उसको महसूस किया जा रहा है। चाहे श्रद्धा हत्याकांड में भी देखा जाए कि वो जो दोनों जो लड़के लड़की हैं वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान करके अलग रहते हैं और यहाँ भी देखा जाए दोनों जो हैं, आरोपी की बात करें या मृतका की बात करें, दोनों बहुत अच्छे परिवार के हैं और दोनों दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रहने के दौरान में लिव इन में रहते हैं और ये दोनों फैसला करते हैं कि बाद में लोग शादी करेंगे। लेकिन इसी बीच में लड़के की शादी तय हो जाती है और लड़की के द्वारा बार बार उस पर दबाव बनाया जाता है कि तुम वहां पे शादी नहीं करोगे जी। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झंझट होता है और आईएसबीटी का इलाका जो आईटीओ से आगे आईएसबीटी का इलाका है, उस आईएसबीटी इलाके में ही कार चलाने के दौरान में ही आपस में टकराहट होती है और उसके बाद जो टेलीफोन चार्ज करने का, मोबाइल चार्ज करने का जो केबल होता है, उसी केबल से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद हत्या करने के बाद अपनी प्रेमिका की लाश को उस गाड़ी में रख करके कई किलोमीटर तक वो घूमता रहता है। आरोपी तकरीबन 40-45 किलोमीटर घूमने के बाद वो जाता है एक ढाबे में और ढाबे में जो नजफगढ़ का इलाका है वहां पहुंचता है और वहां पहुंच करके एक ढाबे में छुपाता है। तो कहीं का एक पैटर्न जो है और दिमाग में जो एक आरोपी की जो मानसिकता है वो निकल के सामने आती है और एक तरह से कह सकते हैं कि आज जब कोर्ट में पेश किया गया था उस आरोपी को, तो उस आरोपी के चेहरे पे भी इस बात का मलाल था कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेकिन इस तरह के गुनाह हमारे समाज में लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं, इस तरह के क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो वो उसे उस ग्राफ को कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है और ऐसे मामले में जरूरत है समाज के तमाम युवाओं के बीच में एक अच्छे मैसेज देने की, घर परिवार और इसके साथ साथ
जो इस तरह के रिश्ते और जो एक कहा जा सकता है गुस्से और आवेश में जिस तरह से इस तरह के मामलों को अंजाम दिया जाता है, तो इस मामले में लोगों को प्रेरित भी करना होगा, युवाओं को प्रेरित करना होगा कि इस तरह के गुनाह ना करें और किस तरह से एक कहा जा सकता है योग या कहा जा सकता है कि अपने गुस्सा पे कंट्रोल करना, तो वो सब भी बताना बेहद आवश्यक है। जी बहुत 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 आवश्यक है। खासकर प्रिय दर्शक, शंकरानंदे कैसे पितृ मातृर सहित जी सम्बन्ध, সেই সম্বন্ধৰ গুৰুত্ব আজিৰ তাৰিখত যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত কমি অহা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এংগাৰ মেনেজমেন্ট, নিজৰ খঙৰ ওপৰত যি নিয়ন্त्रण, সেই নিয়ন্त्रण নথকাৰ কাৰণে এনেবোৰ ঘটনা ঘটে। शंकर जी, और एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आपने बताया आईएसबीटी एरिया में जो दिल्ली का एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उस एरिया में जाके लड़का जो आरोपी है वो गला दबा के, डेटा केबल से गला दबा के निक्की को हत्या करते हैं। तो कुछ टाइम बताया आरोपी ने, जो स्टेटमेंट आरोपी ने पुलिस के सामने दिया है उसमें कुछ टाइम बताया? क्योंकि अगर दिन के टाइम पे या शाम के टाइम में होता है तो वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अगर किसी को आप किसी का गला दबाते हो तो निक्की ने तो चिल्ला ही होगा। तो टाइम क्या है, कुछ टाइमलाइन बताया है आरोपी ने, किस टाइम पे हुआ था और इतना सीक्रेटली उसने इसको अंजाम कैसे दिया? वाकई में पार्था, आप जिस तरह से जानते हैं, आप तो भली भांति आईएसबीटी के इलाके से परिचित हैं और जिस तरह से उस इलाके में देखा जाए काफी भीड़ भाड़ का इलाका है। वहां से कहा जा सकता है कि चंद दूरी पे वहां पर विधानसभा है, दूसरी तरफ देखा जाए आईटीओ है, तीसरी तरफ देखा जाए लाल किला का इलाका है। तो वो जो इलाका है काफी व्यस्त वाला इलाका है। लेकिन ये जो पूरा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, एक कार के अंदर दिया गया था और कार के अंदर अंजाम ने कि वो बातचीत के दौरान गुस्सा हुआ, गुस्से के दौरान ही वो गला दबाता है, गला दबाने के बाद वो केबल निकाल करके वो महज चंद मिनट के बीच का ये फासला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस मामले पर कोई गुमशुदगी का मामला दर्ज नहीं हुआ था लड़के के लिए। इस मामले में दिल्ली पुलिस की जो सतर्कता है वो काम आई और यहाँ पर दिल्ली पुलिस से जो क्राइम ब्रांच है, क्राइम ब्रांच में कोई मामला भी दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन एक मुखबिर के द्वारा बताया गया कि वहां पे फ्रिज में कुछ संदिग्ध हालत में किसी के बॉडी को डालने की खबर आई। और जब इस मामले की पड़ताल की गई, क्राइम ब्रांच की टीम बिना केस को रजिस्टर्ड किए वो जब वहां पे पहुंची और जाके बाकायदा पड़ताल की तो पता चला कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। और उसके बाद जब इस मामले की पड़ताल की गई तो उसके बाद आरोपी के बारे में जानकारी मिली और देखा गया कि यहाँ पे जो एक आरोपी की जो भूमिका है वो संदिग्ध नजर आ रही है। और उसके बाद यहाँ पर साहिल जो है उसकी गिरफ्तारी की जाती है। गिरफ्तारी करने के बाद जब वो बाद में इकबालिया बयान देता है कि किस तरह से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, तो उसके बाद ये मामला सामने आता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के लिए भी एक थोड़ी सी राहत वाली बात थी कि यहाँ पर हत्या के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती तो निश्चित तौर पे एक दिल्ली के लिए बहुत बड़ा एक मामला ये बन सकता था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पूरे क्रिमिनल पैटर्न पे अंजाम देने के बाद उस बॉडी को छुपाने का प्रयास किया गया। आरोपी चाहता तो इस मामले की जानकारी वो सीधे जाकर पुलिस को दे सकता था, बता सकता था कि गुस्से में, आवेश में आकर उसने अपनी प्रेमिका की हत्या की है, लेकिन उसने किया नहीं, बल्कि पैटर्न, एक आपराधिक पैटर्न पे काम करते हुए उस बॉडी को ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहा था। जी शंकर जी, सोचने वाली बात यह है, जो इंसान, जो आरोपी है, उसका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन जिस पैटर्न पे उसने ये क्राइम किया है, उस पैटर्न से देखा जा सकता है कि उसने प्लान किया है, परिकल्पित है, उसने प्लान किया है, जो पैटर्न देखा जा सकता है। और प्लान शायद 12 घंटे के बीच में उसने प्लान किया है। जब उनको पता चला, जब निक्की को पता चला ये फिर से शादी करने वाला है और उनके बीच जब बहस हो गई, तो उसके बाद शायद इन्होंने प्लान किया था। आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ पे आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सोची समझी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और अंजाम को देने के बाद जिस तरह से बॉडी को छुपाने का प्रयास, भागने का प्रयास, और यहाँ पर यह भी जानकारी मिल रही है कि शादी के बाद वो गोवा जाने वाला था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसी दौरान में जिस तरह से पुलिस के मुखबिर को जानकारी मिल गई, लेकिन अगर नहीं होता तो हो सकता है कि फिर वो उस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते। अगर डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके बाद ये मामला और काफी तफ्तीश का हो जाता है। इस मामले की जानकारी किसी को नहीं पता चलती जी, क्योंकि जो लड़की है, लड़की के परिवार वाले हरियाणा में रहते हैं, झज्जर में, और उनको कुछ भी जानकारी नहीं थी उसके मामले में। उनके परिजनों को यह भी नहीं मालूम था कि उसकी बेटी की हत्या हो चुकी है।
दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले की जानकारी उस लड़की के परिवार को दिया गया और उनको बताया गया कि उनकी बेटी का कत्ल हो चुका है। तो अगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के मुखबिर के द्वारा जानकारी अगर नहीं दिया जाता तो ये मामला किसी को पता नहीं चल पाता, ना ही कोई शिकायत करता होता, यानी कि ना ही कोई कंप्लेनेंट होता और ना ही इस मामले की जानकारी पुलिस को होती। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि गुनाह करने वाला चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन छोटी सी गलती उसको पहुंचा देता है सलाखों के पीछे। तो यहाँ पर भी वो मामला देखने को मिला, एक छोटी सी गलती उस अपराधी को जिसके वजह से पुलिस उस अपराधी तक पहुंची और जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। तो यहाँ पर एक क्रिमिनल जो माइंडसेट है वो यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्राइम ब्रांच अब इस मामले की पड़ताल में जुटी है कि आखिर कौन कौन से लोग थे, क्या ये किसी और भी लोगों के संपर्क में था, क्या ये अपने परिजनों को भी जानकारी दिया था या नहीं दिया था, क्योंकि इसके परिजनों को ये बात तो पता था कि ये लिव इन में रह रहा है, एक लड़की के साथ में रह रहा है और उसके परिवार वाले उस लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या उसके परिजनों की आपस में भूमिका रही है या उसके दोस्तों की भूमिका रही है, वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और अगर उसके परिजनों की भूमिका सामने आती है तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी फिलहाल जो पूछताछ की प्रक्रिया है क्राइम ब्रांच के द्वारा वो की जा रही है और निक्की जो मृतका लड़की है उसके परिजन भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज वो लड़की का पोस्टमार्टम हुआ और कल जो है इस लड़की का जो तमाम जो आगे की औपचारिकताएं हैं वो की जाएंगी उसके पार्थिव शरीर से संबंधित। लेकिन एक तरह यहाँ पर जानना जरूरी है कि जिस तरह से का आपराधिक पैटर्न, खासतौर पर हत्या करने के बाद फ्रीज में छुपाने का पैटर्न जो है पिछले कुछ दिनों में लगातार 2-3 मामले ऐसे देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमारे समाज के लिए कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है जी। और ऐसे पैटर्न पे लोगों को भी एक्टिव होना होगा, लोगों को भी जागरूक होना होगा, जिससे कि इस तरह के आपराधिक मामलों को जल्द से जल्द रोका जाए। और इसके लिए एक समाज में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। और देखा जाए पार्था तो बहुत कम उम्र के लड़के लड़कियां हैं। जो आरोपी लड़का है उसकी महज उम्र 24 साल 25 साल की उम्र है, लेकिन जिस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति एक कहा जा सकता है टेलीविजन के माध्यम से, जो OTT के प्लेटफॉर्म के माध्यम से या बहुत सारे हिंसात्मक फिल्मों को देख के जो पैटर्न जो एक कहा जा सकता है हमारे समाज में आ रहा है, तो कहीं न कहीं उसका भी असर हो सकता है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए जिस तरह से वो हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो इस तरह के मामले के जो हैं विस्तार से इस मामले पर क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस मामले में कुछ बड़े खुलासे होंगे जल्द ही। शंकर, आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, श्रद्धा मर्डर केस का अभी स्टेटस क्या है? देखिए, श्रद्धा हत्याकांड मामले में जो आरोपी है वो अभी भी वो जेल के अंदर है और उसके जो वकील के द्वारा आज ही, देखिए महज इत्तेफाक देखिए कि आज ही इस मामले में आफ्ताब जो आरोपी है उसके वकील के द्वारा एक जमानत के लिए भी कोर्ट में अर्जी की गई और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसके जो पुराने किताब से पढ़ाई लिखाई है इसको आगे पढ़ाई लिखाई करना है और आगे अपनी जो एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही वो तमाम जो चीज़ें हैं उसको जल्द से जल्द रियायत दिए जाए, उसको राहत दिया जाए, जिससे कि ये अपना आगे करियर बना सके। लेकिन यहाँ देखने को जिस तरह से देखा जाए, चाहे आफ्ताब हो या आरोपी निक्की के हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी की बात करें, साहिल की बात करें, ये दोनों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। साहिल गहलोत की बात करें, ये दोनों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब कोर्ट में उसके वकीलों के द्वारा ऐसा पेश करने का कोशिश किया जा रहा है कि ये गलती से कर दिया है, मासूमियत से गलती। तो ऐसी गलती मासूमियत से नहीं होती है, एक आपराधिक जो एक सोच होती है उसके वजह से ही इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। और यहाँ पे समझना होता है कि जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो ये मामला फिलहाल जमानत तो नहीं मिल सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों को एक उसके खिलाफ जितना ठोस से ठोस यानी कड़े से कड़े जो एक सजा का जो प्रावधान है उस सजा की भी मांग की जा रही है। और यहाँ तक कि आज निक्की यादव के जो पिता हैं, आज वो भी जब दिल्ली पहुंचे थे तो वो भी कह रहे थे कि इस मामले में वो चाहते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, क्योंकि जिस तरह से एक जघन्य हत्याकांड को, एक ब्रूटल तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये एक सामान्य सा कोई भी अपराधी या एक फर्स्ट टाइमर जो क्रिमिनल्स है वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसकी जो सोच है वो एक आपराधिक प्रवृत्ति की है और इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कोर्ट को जल्द से जल्द इस मामले में फांसी की जो सजा है उस आरोपी को देनी चाहिए। देखिए, से देखा जाए जो आफ्ताब का मामला है, जब वो साकेत कोर्ट में मामला पहुंचा था उस वक्त में भी आफ्ताब को भी जल्द से जल्द
फांसी देने की मांग जो है उसके श्रद्धा के जो माता पिता हैं वो कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वही मांग यहाँ पे आ रही है और कहीं न कहीं एक समाज के जो तमाम लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं कि इस मामले में कोर्ट के द्वारा एक कड़ी जो सजा है वो उसका प्रावधान इन ऐसे आरोपियों को मिलना चाहिए। जी शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विरति लो लगे शंकर, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए। प्रिय दर्शक, जी दिल्लीर हत्याकांडे बहुत किटा प्रश्न उत्थापन करिছে। पुलिसे निजर काम करिब, तदন্ত करिब, जी दोषी সেই दोषीक आदालते शास्ति দিব, কিন্তু সমাজৰ ভূমিকা কি? दिल्लीत जी पैटार्न देखा गई हत्या करी निजर प्रेमिकाक हत्या करी फ्रिजत राखी थोৱাৰ जी अपराधर पैटार्न देखा गई गोटे बहुकेटा पैटार्न किन्तु एके एनेधৰণৰ घटना 3টাৰ পৰা 4টা घटिले। प्रेमिकाक हत्या करा, प्रेमिका लिव इन रिलेशনত থাকে, তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাত হয়, বাকবিতণ্ডা হয়, তাৰ পিছত মূলতঃ প্ৰেমিকাক হত্যা কৰে আৰু ডেড বডিটো ফ্ৰিজত থয়। শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডত তো অনুৰূপ ঘটনা ঘটিছে, তাৰ পিছত এনে ঘটনা আমি দেখিবলৈ পাইছিলো। আৰু শেহতীয়াকৈ সাহিলে অভিযুক্ত সাহিলে তেনেধৰণৰ ঘটনা কৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। গতিকে এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ যিসকল অভিযুক্ত বা যিসকলে এনেধৰণৰ ঘটনা কৰিছে তেওঁলোক ক'ৰ পৰা প্ৰভাৱিত হৈছে, তেওঁলোকে আপৰাধিক প্ৰৱণতা কিয় দেখুৱাইছে? সচৰাচৰ তেওঁলোক অন্য সময়ত তেওঁলোকে সাধাৰণ ব্যক্তিৰ নিচিনাকৈ সদৃশ জীৱন যাপন কৰে, কিন্তু ক্ষোভৰ বশৱৰ্তী হৈ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ অপৰাধিক প্ৰৱণতা কিয় প্ৰকাশ কৰিছে এয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন। সমাজৰ নেতৃস্থানীয় লোকসকল এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। এই মন্তব্য শংকৰ আনন্দৰ, মোৰ সতীৰ্থ শংকৰ আনন্দৰ হয় সঁচাকৈ চিন্তনীয় বিষয়। সমাজত 20 বছৰৰ পৰা 25 বছৰীয়া যুৱক যুৱতীসকলে এনেধৰণৰ প্ৰৱণতা কিয় দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে? ইয়াৰ আঁৰত কি? তেওঁ OTT প্লেটফৰ্ম বা যিসমূহ চিনেমা অপৰাধ দেখুওৱা চিনেমাসমূহ, সেই চিনেমাসমূহৰ ইয়াৰ এক কাৰণ বুলি ক'ব খোজে, কিন্তু ইয়াত কিছু আৰু চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন আৰু সমাজৰ বিশেষকৈ চিভিল সোসাইটি সমগ্ৰ বিষয়টোত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। প্ৰিয় দৰ্শক, এটা বিৰতি ল'ব লাগিব। বিৰতিৰ পিছত অন্য এটা বিষয় আলোচনা কৰিম। শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম। ষ্ট্ৰং নহয়